Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you in our today's session. And first of all, I would like to congratulate all of you because you people are the chosen one. And you have competed with more than 60,000 students and you nailed it. And congratulations to all of you. So, our today's discussion is about the preparation of interview. You know that it's integral part and the most significant portion of your job before getting the job. So the importance of interview cannot be denied because it is your first interaction with the employer. Here we can take employer as a PPSC officials or the HED. So before going ahead, we must know that what actually the interview is. All of you are well aware and you are doing some jobs and working in some environment. So interview is a conversation in which you and an employer exchange information, and the purpose of information is to get the idea about the knowledge about the field, about the domain in which you are going to compete. And obviously when the interview is going to be conducted and you are in interview, you have to prove yourself. uh, there are some objectives of the interview, and among those your goal is to present yourself as the best candidate for the position and also to learn more about the position and the interviewer's organization. तो अब बेसिकली मकसद आपका क्या है इंटरव्यू का कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब वट एवर द जॉब इज बिकॉज इन आर केस इट्स द जॉब ऑफ a professor, a lecturer, a teacher, and you have to prove because you are going to compete. If I take the data of female sides, there are more than 900 people who have qualified the test, and in the male side we have almost plus and minus 600 candidates who have qualified. The competition is very tough here. और उधर इंटरव्यूअर की जो आपकी होती है असेसमेंट, वो बड़ी काउंट करती है. ठीक है जी. तो ऑब्वियसली यू आर बीइंग इंटरव्यूड एंड द अदर पर्सन is interviewing you. So what is basically the purpose of this interview? The purpose of interview is what you have to offer. Basically, when you are in the interview, you have to prove your skills, your abilities, your knowledge, and you have to present your personality, that your character, your interest, and you have to prove this thing that you are the best candidate for the job. And why you should be hired, this is the logic that you have to convince the people over there that you are the best candidate and you should be hired for this job. So moving further, we'll see that how you will prepare for the interview. आप माशाल्लाह से सारे लोग जो है इस वक्त इंटरव्यू के प्रेपरेशन कर रहे हैं. तो अभी तो हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं रैंडमली बिकॉज कुछ लोग आप में से जो हैं वो इंटरव्यू की प्रेपरेशन कहीं किसी न किसी फॉरम से कर रहे हैं, कुछ अभी सोच रहे हैं. तो इंटरव्यू जो है वो आपका बिल्कुल ही करीब है, आपकी डेट्स वगैरह जो हैं वो इंटरव्यू की आ गई हुई हैं. तो हमने कैसे इसको लेकर चलना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप एन आई ऑन योर गोल्स एंड अल्टीमेटली द गोल ऑफ ऑल ऑफ यू इज टू गेट द जॉब. यही है जी गोल आपका. आप अपने म्यूट कर अनम्यूट करके आप बीच में से सवाल भी कर सकते हैं और कोई चीज़ आपको अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. ठीक है जी. तो इट्स अ काइंड ऑफ इंटरेक्टिव सेशन, नॉट अ टीचर सेंटर्ड. Why you will be good at the job you seek? If you are undecided,
are unsure about the jobs that best match your skill, interest, and background, take time now to assess yourself and explore various career fields. तो ये आप लोग पहले से कर चुके हैं, आपने एक्सप्लोर कर लिया है, आपने अपनी स्किल्स को देख लिया है, आपने अपने इंटरेस्ट को देख लिया है, आपने अपने बैकग्राउंड को भी देखा हुआ है, और आपको आगे ये भी पता है कि आपसे उन्होंने क्या काम लेना है. एम आई राइट? Yes, sir, तो sure. अब जो है हम इस पोजीशन पे हैं कि हमें ये जॉब चाहिए. ठीक है जी. तो जॉब के लिए जो इंटरव्यू है उसमें अभी ऑलमोस्ट हमारे पास एक वीक जो है वो ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है. तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इस वीक में आपने क्या करना है. बहुत से लोग कर रहे हैं जो मेरे साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं काम असाइन करता रहता हूँ और चेक भी करता रहता हूँ. तो ऑलमोस्ट हम सब के पास एक वीक है, अगर नहीं भी है तो 10 दिन होंगे. तो इन दिनों में आपने क्या करना है कि एक तो आपने हर रोज जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ना है, एक इंग्लिश और एक उर्दू. ठीक है जी. तो पढ़ रहे हैं आप लोग? Yes, sir, we are reading. Yes, sir, we ओके are. जी. एक इंग्लिश पेपर और एक उर्दू पेपर, उसको पढ़ने नहीं लग जाना, उसको थीसिस की तरह पढ़ने नहीं लग जाना कि आपने उसमें से लिखना है थीसिस. जस्ट आपने उसकी स्किमिंग करनी है, स्कैनिंग नहीं करनी. स्किमिंग एंड स्कैनिंग यू नो ना. Yes, sir, we know. तो ये आपने डेली की रूटीन आप बना लें. सुबह आपने जितने भी डेज हैं आपके पास, आपने कोई न्यूज़पेपर मिस नहीं करना, उस सारे को खोलना है. उसमें से जो हेडिंग्स हैं उनको देखें, जो ज़्यादा करंट अफेयर के बारे में हल्का सा उसकी स्किमिंग कर लेनी है, और एवरीथिंग यू शुड सी एंड यू शुड रीड. ठीक है जी. अब इसके बाद आपने रात के वक्त क्या करना है, ये तो होगी सुबह की डोज. ठीक है जी. एक आपको शाम की डोज देते हैं कि एक ना एक आपने फेवरेट जो आपका टॉक शो है, जो पॉलिटिकल होता है, सारे चैनल्स पे लगता है. मैं किसी चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं किसी उसको प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी जो भी आपको पसंद है, आप एक जो है ना टॉक शो, वो ज़रूर जो है वो कर लें. देखें रात को, उसके ऊपर उसकी जो करंट अफेयर्स के बारे में जो टॉक्स चल रही हैं उनके ऊपर क्या टेक्स हैं दोनों पार्टीज की, अपोजिशन की या जो है जो गवर्नमेंट की पार्टी है. ठीक है जी. तो ये थोड़ा सा आपने उसको देख लेना है. ठीक है जी. तो जिनको मैंने कहा हुआ था पहले से वो देख रहे हैं जी. Yes, sir. अच्छा जी, वेरी गुड. ठीक है जी. उसके बाद हेयर कट, ये बड़ी ज़रूरी है. बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि बिल्कुल एट जिस दिन हमारा इंटरव्यू होता है ना, उस दिन से एक दिन पहले हम कटिंग करवा लेते हैं, और कटिंग भी किसी ऐसे नाई से करवाते हैं जो आपको बकरियों की तरह या भेड़ों की तरह आपकी कटिंग करता है. तो एटलीस्ट जो है वो कटिंग जो है, हेयर कट जो है वो आप एक कोई वीक नहीं तो कोई 4 5 6 दिन पहले, ताकि वो नेचुरल लगे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं. ठीक है जी. तो ये मेरा ख्याल है जिनकी डेट्स आ गई हैं इंटरव्यू की, वो उस लिहाज से हेयर कट ले लें. और ये मतलब जो है, और जिनकी नहीं आई वो ज़रा वेट कर लें. ठीक है जी. उसके बाद है आपका ड्रेस. इंटरव्यू के लिए ड्रेस की सिलेक्शन. देखिए, लेडीज के लिए भी कोई भड़कीले और बहुत ज्यादा जो है ओवर किस्म के कपड़े, जैसे मतलब मजेंडा कलर है, रेड है, इस तरह के जो कलर्स हैं, वो उनसे मैं मतलब पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि वो ना आप उस तरह के पहने. और जो मेल हैं उनके लिए कोड, ड्रेस कोड है कि वो कोशिश करें 2 पीस. ठीक है. 2 पीस में हमारे यहाँ मतलब हम बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है कि बड़ा अच्छा सूट पहनना होगा, बड़े अच्छे शूज पहने होंगे. मतलब अगर ब्लैक आपने पैंट पहनी है तो बीच में आपने जो है ना सॉक्स जो हैं वो आपने जो है वो वाइट पहनी हुई है. तो काइंडली इस चीज़ के ऊपर भी आप फोकस करें कि जिस कलर की आपकी पैंट है उसी कलर की आपकी सॉक्स होनी चाहिए. ठीक है.
क्योंकि जब आपने वहाँ पे बैठना है तो ऑब्वियसली जब आप बैठते हैं तो पैंट थोड़ी सी घुटनों वो जो है टखनों से ऊपर होती है, तो वो फिर अजीब सा लगता है। तो इसलिए टू पीस आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, और वो वाले नहीं जो शादियों पे पहने जाते हैं, सजा जो है मतलब बड़े उसके भड़कीले और वेलवेटी टाइप और बड़े ही फैंसी और शोई किस्म के, वो नहीं। ठीक है जी। तो एक नॉर्मल कलर So कोई भी sorry हो to सकता है। interrupt you here. जी जी जी। Sir, I have a question. Sir, can we go for shalwar kameez and coat? आई वुडंट Is it all okay? सजेस्ट। नहीं, आई विल You नॉट won't सजेस्ट। suggest? नो। All right. जाने के लिए कोई एतराज़ नहीं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि जब मैं गया था उसके असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए, तो मेरे ही कलीग थे एक, मुझे नहीं पता उनका इंटरव्यू कैसा हुआ। लास्ट टाइम भी उनका इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी और इस दफ़ा भी आई थी। उन्होंने शलवार कमीज़ पहना हुआ था, थे भी मौलवी टाइप, और उन्होंने साथ ऊपर वास्केट और नीचे सैंडल। ठीक है। मुझे अब इस चीज़ का नहीं पता कि मतलब उनकी सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुई, इंटरव्यू नहीं सही हुआ या ड्रेस, तो ड्रेस मैटर्स। ठीक है। All right. आप इस्लामियात के इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे। ठीक है जी। आप इंग्लिश के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और यू शुड लुक लाइक अ कैंडिडेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है जी। तो All right. भड़कीले कपड़े नहीं पहनने, ये जैसे आजकल शादियों पे ट्रेंड्स है ना, वो बीच में जो है फैंसी टाइप और वेलवेटी टाइप, और ऊपर फिर वो कुछ लगा भी लेते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे अवॉइड करें। सिंपल आपका ड्रेस हो, टाई उसके साथ मैच करती हो, ठीक है, और आप उसके लिए चले जाएं। क्लियर हो गया जी। ड्रेस आप लोग अपने अभी से सिलेक्ट करके उनको ड्राई क्लीन्स वगैरह करवा के उनको जो है वो अपने जो है आपकी वार्डरोब जो है उसमें लटका छोड़ें, ताकि ये काम खत्म हो जाए। ठीक है जी। और ये सॉक्स वाला सीन जो है, काइंडली प्लीज सॉक्स आपने उसी कलर की पहननी है जिस कलर की आपकी पैंट हो। ये ना हो कि सॉक्स आपने वाइट पहनी हो, पैंट आपने ब्लैक पहनी हो। ठीक है, थोड़ा सा। और उसके बाद जो है करंट अफेयर पे नज़र रखें। ठीक है जी। जितने इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कोविड है, कोविड की अपडेट्स आपके पास होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं। और ये जो अभी जलसे जुलूस हो रहे हैं, मतलब अपोजिशन की तरफ से, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, इनके ऊपर ज़रा आपने गहरी नज़र रखनी है। ठीक है, कि दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। क्लियर होगी जी बात। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कीप प्रेइंग टू गॉड। ठीक है जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि वो आपको कामयाबी दे। ठीक है जी। उसके बाद हम जाते हैं अ नाइट बिफोर एन इंटरव्यू। ठीक है जी। अब आपकी इंटरव्यू सुबह है और रात हो गई है, तो न्यूज़पेपर तो आपने पढ़ लिया होगा सुबह में ही, उसको ज़रा एक दफ़ा दोबारा आपने देख लेना है रात को। टॉक शो आपने देख लेना है। ठीक है जी। बाकी जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसके पॉइंट्स वगैरह बनाए हुए होंगे, उनको ज़रा रिवाइज करते जाना है। ठीक है जी। और जो चीज़ें आजकल आप पढ़ रहे हैं, काइंडली उसको एज इट इज़ ना छोड़ें। उनके छोटे मोटे जो है ना वो नोट्स बनाते जाएं, ताकि नाइट बिफोर जो है आपको वो दोबारा से पढ़ना ना पड़े। आप उनके जो है वो क्या करें, उनके नोट्स वगैरह जो हैं वो पकड़ें और उनको एक दफ़ा देख लें, ताकि जो है वो आपकी पूरी रिवीजन हो जाए, जैसे आपने टेस्ट में, मैंने आपको बताया था, टेस्ट में आपने किया था। ठीक है जी। और नमाज तो आप माशाल्लाह से पढ़ते ही होंगे, तो उस रात ज़रा थोड़ा सा रात जगह कर लीजिएगा, कुछ नवाफिल पढ़ लें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें। ठीक है जी। अब आपकी रात गुजर गई, जैसे भी गुजरी, बेचैनी तो होती है ऑब्वियसली। अब प्रेशर आप लेते हैं, कोई भी बंदा जो भी है, तो जितना मर्जी कॉन्फिडेंट हो, प्रेशर ज़रूर होता है। और ये मतलब जितना आप चीज़ों को नर्व्स पे लेते हैं उतना आप ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं। ठीक है। तो बी रिलैक्स, इतना कुछ नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने लिखी है जॉब तो मिल के ही रहनी है। ठीक है, लेकिन अपनी एफर्ट्स आपने करनी है। ठीक है जी। उसके बाद होगी, आप सो गए, उठ गए, ये होगी सुबह। ठीक है जी। फजर की आपने नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला से दुआ की, रिलैक्सिंग सा शॉवर लें तसल्ली के साथ। आजकल जो है सर्दियां हैं, तो जैसे भी आप जिस भी पानी से नहाते हैं, गर्म से ठंडे से, थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो और थोड़ा सा
आपने जैसे अगर 5 मिनट में नहा लेते हैं तो आपने थोड़ा सा 10 मिनट शावर लेना है ताकि ज़्यादा आप रिलैक्सिंग हो। और ये ना हो कि सर कह रहे हैं कि 10 डबल करना है तो ठंडे पानी से आप अंदर ही ठिठुरते रहे, कि सर ने कहा था कि डबल टाइम पे शावर लेना है तो अंदर ही आप ठिठुरते रहे। ठीक है, ऐसे नहीं करना। मतलब एक अच्छा शावर आपने लेना है। अगर आप शेव करते हैं तो ताज़ी शेव होनी चाहिए, ना कि आपने रात को करके सो जाएं और सुबह तक वो फिर जो है तो अगर आप करते हैं, अगर आप नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली आप वो खत करवा लें या उसकी ट्रिमिंग करवा लें जो इधर उधर की चीज़ें हैं। ठीक है जी। और नाश्ता आपने करना है एनर्जेटिक सा, अच्छा सा। टाइम आपको पता ही होगा आपके इंटरव्यू का, उस लिहाज से आपने मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जेटिक सा हो। थोड़े बहुत अल्लाह की राह में मतलब जो है खर्च भी कर लें, जाते हुए किसी को दे दें। ठीक है। और अपने पेरेंट्स से, बच्चों से, जो भी आपके घर में लोग हैं उनसे दुआ की रिक्वेस्ट करें। ठीक है जी। और आप अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़े। ठीक है जी। और कंफर्टेबल व्हीकल यूज़ करें, ना कि मतलब जो है आप जलील होके पहुंचे। बारिश हो रही है तो आप मोटरसाइकिल पे गए हैं तो सारे कपड़े आपके ख़राब हो गए हैं। तो ये भी आपने थोड़ा सा देखना है, क्योंकि उस टाइम जब आप घर से निकलते हैं और वहां तक पहुंचने का जो स्पैन होता है ना, वो ट्रेवलिंग वाला, वो बड़ा ही जो है कह लें कि एक आप अलग सी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। किसी से झगड़ा हो जाए, मतलब समटाइम्स होता है ना कि कोई रास्ते में जाते हुए कोई मतलब ठुक ठुका हो जाता है किसी के साथ गाड़ी का, तो ऐसे ही मतलब आराम से रिलैक्स होके सुकून से आयतल कुर्सी पढ़ते हुए जाएं। ठीक है जी। और ये आप पहुंच गए ऑफिस में। ठीक है जी। टाइम लेके जाएं, टाइम से पहले वहां पे पहुंच जाएं। ठीक है जी। और पार्किंग के लिए, और ये भी ध्यान रखें कि अगर आप रास्ता भूल जाएं या आपको ऑफिस का पता ना चले या डायरेक्शन आप गलत, तो इतना टाइम आपके पास हो कि आप उसको जो है वो कवर कर सकें और टाइम पे पहुंच जाएं। ड्रेस प्रोफेशनली, वो पहले बात हो गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है बी रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है जी। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस जो है इस पे हम आगे भी जाके बात करेंगे। तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है। कुछ नहीं होने वाला, कोई आपको पकड़ने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू आपका आपके अपने हाथ में है। रिव्यू योर इंटरव्यू एजेंडा, जो भी आपने चीज़ें देखी हुई हैं उसको रिव्यू करें और गो टू द रेलिवेंट ऑफिस एंड गेट योर डॉक्यूमेंट चेक्ड। सबसे पहले जब आप जाएंगे आपके वो डॉक्यूमेंट्स आपसे पकड़ेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया हुआ है, ठीक है जी, यानी वो पहले से सर्विस कर रहे हैं और प्रॉपर चैनल, वो अपना एनओसी साथ लेकर जाएं, क्योंकि पहले आपने वहाँ पे जमा नहीं करवाया हुआ। और अपलोड भी अगर किया है तो ओरिजिनल आपने साथ लेकर जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने हैं। सी एन आई सी आपने साथ लेकर जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और साथ उसकी 3-3 फोटो कॉपीज के सेट्स। ये अभी से फोल्डर बनाकर तैयार कर लें। ठीक है। वो ना हो कि वहां पे जाके आप जेब में से देखें तो आईडी कार्ड ही ना हो, तो फिर बंदा ज्यादा पैनिक होता है। ठीक है जी। बी रिलैक्स एंड वेट फॉर योर एक्सक्यूज टर्न। मी सर। जी जी। सर सारे डॉक्यूमेंट्स के 3-3 सेट चाहिए? जी, सारे डॉक्यूमेंट्स के। अच्छा ठीक है। उसमें ये नहीं है कि मैट्रिक का आपका स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट है तो उसकी भी, मतलब क्रेडेंशियल्स जो आपके सर्टिफिकेट्स ऑफ डिग्रीज हैं या डिप्लोमाज हैं जो आपने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है। एक या दो वो रखते हैं एहतियातन, आप 3 साथ ले जाएं। वैसे वो भी इंस्ट्रक्शंस आपको आ गई होंगी जितने आपने लेकर जाने हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप वहाँ पर बैठ गए हैं वेटिंग एरिया में, आप वहाँ पर रिलैक्स होके बैठें। ठीक है। पानी की बोतल साथ ले गए हैं, कॉफ़ी साथ लेके गए हुए हैं, तो इट्स ओके, आप पी सकते हैं। बी रिलैक्स। ठीक है। और सोचना नहीं आपने कि इंटरव्यू होने वाला है मेरा, बस रिलैक्स होके ऐसे ही बैठें जैसे आप कहीं मतलब पिकनिक पे आए हुए हैं। ठीक है। थोड़ा सा बहरहाल होता नहीं है ऐसे, लेकिन यू शुड शिफ्ट योर माइंड, क्योंकि जितना आप उसके बारे में सोचते रहेंगे पैनिक होते रहेंगे। ऑब्जर्व द वर्क इन्वायरमेंट, इज इट फॉर्मल और रिलैक्स। इधर उधर से देखें लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से ऑफिस के बाहर आप बैठे हैं, क्लर्क्स आपके साथ कैसा डील कर रहे हैं।
ठीक है जी। और उसके बाद अपने चेहरे पे एक स्माइल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, टू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। ठीक है जी। अगर हमारा सेशन खत्म हो जाता है तो इसी सेशन को हम आगे दोबारा से ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये स्माइल वाला जो है ना, वो जरूर आपने रखना है। ये ना हो कि कुछ देखने वाला भी आपको देखे और कहे कि जी पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया। ठीक है जी। ले जी, आपका बेल बजी, नेक्स्ट का जो है वो बुलावा आ गया आपका। हेयर स्टार्ट्स योर इंटरव्यू। ठीक है जी। अब ये इसमें यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सी जो बच्चे जो हैं वो कर जाते हैं, ब्लंडर्स कर जाते हैं। ठीक है जी। आपने, आपका नाम बुलाया, पुकारा गया, आपने उठना है, सेट योर ड्रेस, टाई, दुपट्टा जो भी आपने पहना हुआ है जरा ड्रेस को सीधा सीधा करें, बाल शाल अपने देखें। ठीक है जी। और मूव टूवर्ड्स द इंटरव्यू विद अ स्माइल एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है जी। स्माइल आपके चेहरे पे हो, कॉन्फिडेंट आप हो, और आप ये अंदर चले गए जी। ठीक है जी। ये हम बात कर रहे हैं ऑफिस की। जब आप एंटर होंगे तो ये आपका डोर है जिससे आपने एंटर होना है। ठीक है जी। जो ही आप एंटर होंगे, ये एक टेबल लगा हुआ है, ये वाला टेबल है आपका। ठीक है जी। और ये एडवाइजर वन है। एडवाइजर वन, A1 मतलब एडवाइजर वन जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। ये आपका एडवाइजर टू बैठा हुआ है आपकी राइट साइड पे। ठीक है। बिल्कुल आपके सामने ये वाले साहब हैं मेंबर, जो PPSC के हैं। और ये आपका है DR। DR मतलब डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है जी। ये कौन होते हैं और ये कहाँ से आते हैं, हम थोड़ा सा इस पे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है जी। ये सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि जो ही आप कमरे में एंटर हों तो यू शुड हैव आइडिया कि वहाँ पे कौन कौन होगा। ये ना हो कि आपको पता ही ना हो, अंदर घुसे और आप एकदम से हैरान परेशान हो, ये मैं कहाँ पे आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ से आपने दरवाजा खोलना है। दरवाजा खोलते हुए अंदर आपने पूछना है मे आई कम इन सर। ठीक है जी। वो आपको कहेंगे यस। ठीक है जी। आप आए हैं, पहले मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे लोग कितने हैं और फिर हम बाद में करेंगे कि बैठना कैसे है और इजाज़त लेके आपने अंदर जाना है। बाज लोग कहते हैं जी इजाज़त नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने खुद तो बुलाया होता है, तो इसलिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, आपने इजाज़त लेनी है और आपने अंदर चले जाना है। अंदर आपके सामने बिल्कुल ये सीट खाली पड़ी होगी जहाँ पे आपने बैठना है। ये सामने आपकी टेबल होगी, यहाँ पे पेपर भी पड़ा होगा और पेंसिल भी, P और P। ठीक है जी। एक पेपर, एक दो पेपर्स पड़े होंगे, उसके ऊपर पेंसिल पड़ी होगी। आपके बिल्कुल राइट साइड पे एडवाइजर वन, एडवाइजर टू। एडवाइजर वन आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, एडवाइजर टू भी आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है जी। ये आपका DR है। DR का मतलब होता है डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। ये कहाँ से आता है? ये HED की तरफ से आता है, ये डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन इनको खुद बुलाती है। क्योंकि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो ये पर्सन जो है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में से होता है जिसको वो ड्यूटी असाइन करते हैं। और सबके पास आपके 50-50 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है जी। 50 आपके मेंबर के पास, 50 आपके DR के पास, 50 आपके एडवाइजर वन के पास, 50 आपके एडवाइजर टू के पास, और यू आर एम्प्टी हैंडेड ओवर हियर। ठीक है जी। ये बकरा सर यहाँ पे बैठा है जी। सर ये 100 मार्क्स का नहीं होता इंटरव्यू? जी 100 का ही होता है, मैं बताता हूँ। जैसे आपका 100 का ही हुआ था टेस्ट और बाद में उसको 50 पे वो करते हैं अच्छा डिवाइड। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, राइट। अब ये आप क्लियर होगी जी? किसी को कोई मसला तो नहीं है इसकी सेटिंग की, इंटरव्यू की सेटिंग की जो No, sir, all समझ clear. है? क्लियर है जी। ये सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया है ताकि फेमिलियरिटी एक जो है वो आपको पहले से आइडिया हो कि आप कितने कसाई वहाँ पे सॉरी कितने लोग जो है वो वहाँ पे आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे होंगे। ठीक है जी। तो ये आपके एडवाइजर वन, एडवाइजर टू और DR, तीन ये लोग होंगे, मेंबर होगा। अब हम
आगे बात करेंगे कि ये क्या, किस लिए वहां पे बैठे हैं और इन्होंने क्या क्या करना है। देखें जी, सबसे इम्पोर्टेंट बंदा जो है वो आपका मेंबर है। जो वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन आपका होना है, सॉरी, वो आपका मेंबर के साथ होना है, ये इन साहब के साथ, इनके सामने ही आपने बैठना है। याद रखें, जब आप बैठते हैं तो आपने उस अगले बंदे की आंखों में आंखें डालनी नहीं है, ठीक है। आंखों में आंखें डालनी नहीं है तो फिर कहाँ आंखें रखनी है। जब आप किसी के सामने बैठते हैं तो यू शुड लुक एट हिज और हर चिन, जो उसकी चिन होती है ना, उसके ऊपर आपकी जो है वो नजर होनी चाहिए। बिल्कुल आंख से आंख मिलानी जरूर है, लेकिन ऐसे घूरना नहीं है एक दूसरे को, ठीक है जी। तो बिल्कुल आप उसके सामने बैठे हुए हैं। सबसे पहले जो है वो इंटरव्यू स्टार्ट करने वाला आपका जो है वो होता है क्या उसको कहते हैं, मेंबर, ठीक है जी। उसने ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट करना है और उसने आपसे कहना है कि जी वो आपका नाम पुकारेगा, ठीक है जी। नाम पुकारने के बाद जो है वो आपको इंट्रोड्यू आपका इंट्रोडक्शन लेने के लिए आपको कहेगा कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है जी। अब आगे इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताना है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये A1 कहाँ से आया है और A2 कहाँ से आया है। देखें, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ये जो एडवाइजर्स होते हैं ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, असिस्टेंट्स प्रोफेसर से लेकर फुल प्रोफेसर तक होते हैं, और किसी न किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं या रिटायर्ड प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है जी। और ये अपनी डोमेन के एक्सपर्ट होते हैं। डोमेन के एक्सपर्ट मतलब लिटरेचर की, अगर दोनों, मैंने आपको बताया कि दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हो सकता है ये दोनों लिटरेचर के हों, ठीक है, और हो सकता है एक लिटरेचर का हो और एक लिंग्विस्टिक्स का हो, ठीक है जी। तो आपने तैयारी दोनों एंगल से करनी है, लिटरेचर की भी और लिंग्विस्टिक्स की भी, ठीक है जी। इन्होंने आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। ये जो आपके लोग बैठे होते हैं ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने आपसे करने हैं, ठीक है जी। उन क्वेश्चंस को कैसे हमने देखना है वो बाद में देखते हैं। ये साहब जो इधर बैठे हैं ये डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये ऑब्जर्वर होते हैं। इन्होंने आपसे